survived the batter. Shahid Khan and good looking, very good line and length, right on the money. Wristlet. Talking about Shahid Khan on the non-strikers and the best batter of the last year. The last year's hero, Shahid Khan. He won that bike, Shahid Khan, last year of Asian Cricket League Season 3. Trying to pull on this occasion. It was very quick, beaten completely. Have a look at this bowling replay. Straight outside the off stump. Oh, this time it's driven towards the long off. A bit of fumble, just a single. 7 for 1 and couple of deliveries left in the over number 2. Mabu, after winning, Mohammad Riaz decided to bowl first against Malakand Stars. Good batting. Down the track towards the mid-wicket. Oh, it's converting that into a doubles. Good running. I saw a bit of fumble from the fielder. Made sure that he ran for an extra. Shahid Khan on strike, last year's hero. He was the best batter of Season 3 of ACL. Looking forward for his performance this year as well. Has he got enough? Right in the middle of the bat. The good sound came from the bat. That's a 6 number 1. Oh, the super player Shahid Khan is off the mark with a brilliant 6. Stand and deliver into the stand, and that's how they completed over number 2 with a brilliant shot. 15 for 1 after 2 overs. So 2 Khans out there in the middle for Malakand Stars. Shahid Khan and Suhail Khan. Wahab into the attack from the commentary box, and here we go. Slow one, played through the gap. He finds the fielder in the deep extra cover. Here we go. Shahid playing on 11 from 5. That's a kind of touch you expect from a champion player like Shahid Khan. Let's keep talking about his performance in the last year. The Best Batter Award. He grabbed that title in season number 3 of ACL. Started off really well with one magnificent 6. Day number 3 of ACL season 4.
Oh, that's very well bowled. Outside the off, some good line and length, short of the length. ZMKS 17 for 1 from 2.3. Outside the off stump, he has to reload this one. The highest team total just remains for ODP cricketers. 75 runs yesterday was 74. It's up in there, safely landed, and it's all the way to the fence. It's good placement. He knew there's a huge gap there. Mid off, inside the circle, long on, pretty wideish, and making use of that huge gap and finds the boundary. Oh, the lefty got a third man and a fine leg inside the circle. Well driven, finds the field, he'll get a single. It's one ball to go, 23 for 1. Shadgan got to a very good start today. The first match. Nicely placed. Back towards the deep extra cover. A bit of fumble allowed the batter to come for next run. The intention is very clear from this man. After 3, a strategic timeout, a 25 for 1. So welcome back after the strategic timeout after 3 overs 25. I've been asked to bat first. Dilshan into the attack, the bowling chain from Mukud end. Straight away some movements and luckily for, misunderstanding. That has been another very unlucky for the batter, dismissal, and the question is who has to be out. Is it going to be Shahid?
or Suhail Khan. The umpire will be discussing that. And finally, it's a good news from the dugout of Malaccan Stars. One of the strike player, Shahid Khan, still out there in the middle. 14 from 7. He got a just good start. Got a big 6. The new batter will be walking to the middle after losing a couple of wickets now. 3.125 for 2. Fadullah, skipper, into the middle. After a very unlucky dismissal, Sohail has to be back to the dugout. Shahid playing well, 14 from 7. And Dilshan. Straight away some movements. We have a look at this. It's good bowling. It's swinging away from the right-hand batter. Played through the line towards the long on, getting a single. I need to really work hard to get those big sixes. Batting from this end to clear the boundary. Plenty of power and timing is required. And for the right-hand batter, there is fine leg inside the circle. Up in the air, Fadullah, toss ball, chance, has he taken? Has he taken a blinder? What a good catch. He had to run few yards and made sure they kept eye on the ball. And he got a big fish. Fadullah has to depart. Rizvi, what a magnificent effort there in the deep extra cover region. The first ball, Fadullah wanted to play toward that cover region and just managed to get. Brilliant piece of fielding. Another wicket goes here. Fadullah back into the dugout without scoring. So wicket number 3 falls here in the 4th over. 3.3, 26 for 3. It's one of the very good catches. Day number 3 of ACL season 4. And Dilshan strikes. Oh, right on the block hole. It's played towards the square leg for a single. And he off the mark. Shazab Afridi is in the middle. Needs to play a good innings. He needs to play and he needs to give a good company out there to Shahid Khan. He is... this will be reloaded very far outside the off stump. We are bowling to one of the champion player. Look at this. He's completely losing the line on this occasion. The intention is very clear from Shahid. He has to be there right till end of this innings. He kept on losing the wickets from the other end. Up in the air. Has he got enough? Has he got enough? Oh, brilliant piece of fielding. Just beaten the man. And he saved few runs there. Has almost got away with that. What a brilliant piece of fielding. Once again, outstanding ground fielding by Jasim on this occasion. Samabu electing to bowl first and well supported by the bowler and the fielders.
Short of the length and not able to get the connection. It's a good over, comes to an end. Run out. 3 runs conceded and a wide in this over. 4 overs have been bowled, 29 for 3. The highest team total still remains for Udupi cricketers. 75 runs they scored, and 6 overs was never ever able to chase down. So moving on, a couple of overs left. MK is 29. Time for them to put the feet on the accelerator. They need to get at least 30 runs from the remaining 2 overs to get into a decent score. The pass score in this ground is around 70, and anything more than that will be very tough to chase down. Bowling change. That's Rifaz straight away. Right on the block hole and stealing a single on this occasion. Shazab Afridi wanted to play. Oh, that's a very risky single. Hey, keeper missed the trick. Just not managed to collect the ball on time and survive the batter. Most importantly, it would have been a big wicket of Shahid Khan. Have a look at the footwork. The replay, you can watch the huge LED screen on the left-hand corner of this ground. Being a walking day, the weather looks so cold. It's around 15 degrees at this moment. Still, we have plenty of people have come to watch this cricket match live right here in Absolute Sports Ground. Good looking shot. Has he found? He has sailed over the fence. Oh, that's a perfectly executed cover drive. Got the width. Played an absolute superb cover drive. Brings another boundary for, have a look at the bat swing. And he found short of the length, made sure that he played through the gap. Straight bat. And that's how a champion player plays. It's not only slogging toward the leg side. It's one of the best shots of this evening. They need to get at least 15 runs in this over. 35 runs, maybe running short of 10 runs. Shahid Khan is the key. 20 from 11. Swack towards offside. It's very quick. Lightning outfield. And that brings him another boundary. It's raining boundaries here in Absolute Sports Ground from one of the champions players, Shahid Khan. As he continues where we stopped the last year champion, the best batter of ACL Season 3. He started off really well. 39 now, as we're talking about 15 runs in this over, already 8 plus 1. Including a leg bite, 8 runs. 10 runs coming so far. Oh, that's a big one. He goes big. He goes out of the park. Shahid Khan, your beauty. He was in a good position, short of the length, but have a look at the timing. Right in the middle of the bat. It was in the zone. 16 runs coming now. It's turning out to be a big over. It's 45 from 4.5. Sailed over the deep mid wicket, one of the strong region. He loves to hit in that side.
the shortest side of this ground. And he's playing with the wind. Another one! Pull shot and the ball disappeared again. It was too good when he swung the bat. He knew what exactly he was doing. Short of the length again. It's never easy to play that shot when the baller balls a short of the length. Have a look at the replay. Yes, right on time. Good position and the ball disappeared into the car parking. Here we go. Team 50 for MKS coming from exactly 5 overs. 51 for 3. As expected, this over was very, very expensive. 2 sixes and 2 boundaries in this over already. And comes to an end. And they have 6 deliveries left. Can they reach up to 65? As we know, 70 is a pass score in this ground. Anything more than 70 will be very tough to chase. That's what the captain would be looking forward. Mabu captain Riaz Mohammed will be having one of his finest bowler to bowl the last. Down the track and played really well. There will be a fielder, but they're not going to run anything more than single. Dilshan into his second over. He bowled well, conceded only 4 runs in the first over. As expected, the captain to bring is one of the strongest weapon to bowl to the last over, and most importantly, to Shahid Khan. This is going to be interesting now. Dilshad to Shahid Khan. 5 deliveries left. Can he get more than 15 runs in this over? Oh, that's a very, very good piece of bowling. Kept it very, very low and allowed only a single. No, what Afridi need to do is try and get a single. Or is he going to go for a big shot? Team needs to finish with a good run. At least 65. If they can manage to get close to 70, they will take it as a bonus. Oh, right till the middle stump. You miss and I hit through the gate. Balled him, and importantly, it's a dot ball. Let's take copy of Dilshan. It's too good with that. Very short of the length. Hit Sam, bang, and that's a very important wicket. Shazib Afridi, 3 from 5. Dilshan was too good with that superb bowling effort. Sajid walks into the middle. We're very interesting to see what he's going to do. He's going to face the first ball, but he got a Superman on the other side. Is he going to take a single? It's never easy to go for a big shot from the very first ball if you're playing the shortest format of the game. 3 deliveries left, 53 for 4. Need to run. They will take it. That's a very, very good single. So far, so good, and very, very well done by Dilshan. 2 wickets conceded, 7 runs from 1.4. Yes, they got to reload this one. He's bowling to a very good player, already well settled. Well played. Oh, there is a field. A bit of form. He's going to come back. He needs to run now. Chance for the run out, and Shahid Khan has to depart. Very late to respond, and you got to say that the partner responded really late. He needed Shahid Khan on the striker's end. Nevertheless, it was a very, very good innings comes to an end.
Once again, the champion player started off really well after a superb performance in the last season. Shahid Khan departs 37 from 15. Very, very well done, Shahid. Entertained all of us here. Some brilliant sixes towards the mid wicket, but unfortunately getting out. And a well deserved claps from the teammates in the dugout. What they are left with one. And 55 for 5. And they need to finish with a good knot. Can he get one boundary? One lasty blow out of the park when can reach to 59. And 60 will be the target. Oh, that's very good bowling. Superb piece of bowling by Dilshan. And he made sure that he doesn't leak the last one single as well. Brilliant piece of bowling. Dilshan completed 2 overs, conceded 8 runs and got 2 wickets. Economic rate of 4.25 without any doubt. One of the best bowler. Looking forward for his performance. He played really well. 2 overs. He was bowling to one of the dangerous batters, Shahid Khan. But have a look at the last 5 deliveries. Kept it very, very low. Never ever allowed the batter to freeze their arms. All comes to an end. It's 55 for 6 when we come out after the very short break. It'll be 56 runs to win. We'll be back very soon for the chase. So 56 runs to win from 6 overs. And हमारा साथ जुड़ी हुए हैं Mr. Chirag और Hindi commentator all the way from India. A very good evening to you, sir, and welcome, Mr. Chirag. धन्यवाद शेलजार भाई। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये मुकाबले हैं और ये मुकाबला भी बड़ा होने वाला है क्योंकि रन बने हैं और जब रन आते हैं तो मज़ा आता है।
चेक। थैंक यू शेजर भाई। मुकाबले की ओर बढ़ेंगे क्योंकि जहाँ पे मलकंद स्टार्स ने 54 बनाया और मरबू को 55 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान के अंदर। यश और सजात ये बीच मैदान के अंदर। पहला ओवर लेके गेंदबाज
यस, नेक्स्ट मुकाबले की टॉस के लिए जाएंगे रियाज और प्रिंस, अभी भी बीच मैदान के अंदर 56 रनों का लक्ष्य का पीछा। और मरबू क्रिकेट क्लब जिस प्रकार से इस मुकाबले में है, और इस बार अच्छी गेंद पैर पे करने की कोशिश, इस बार हल्के हाथों से उसे गेंद को सिर्फ ढकेला था जब तक फील्डर वहां से फील्ड करे। 2 की मांग और 2 रन पूरे, अच्छे रन बिटवीन द विकेट, ये होना चाहिए। अब यहाँ से स्कोर कार्ड की बात करें, स्कोर कार्ड पे लगे 7 रन, 1 विकेट नुकसान पे। रियाज खेल रहे 5 पे और उनके साथ ही प्रिंस खेल रहे 1 पे। 56 रनों का लक्ष्य का पीछा। और आप देख रहे हैं एशियन क्रिकेट लीग सीजन 4 का ये मुकाबला नंबर 7वां, ये 7वां मुकाबला है इस टूर्नामेंट का। पहले दिन 3 मुकाबले, उसके बाद हमने देखे थे वो 3 मुकाबले, हर दिन 3 मुकाबले हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से सर्द है, जिस प्रकार से आज हवाएं चल रही है ठंडी ठंडी, मौसम बदला है कतर का, और दोहा कतर में अब 12 सेल्सियस है। अच्छी गेंद, इस बार गेंद हवा में, फील्डर चांस था लेकिन उस चांस को कन्वर्ट नहीं कर पाए। गेंद गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए जाएगी, ये चौका आता हुआ 4 रन, 4 4 4। ये देखिए ये गेंद रिप्ले में देखिए, जिस प्रकार से ऑप्शन के बाहर थी, अच्छा स्ट्रोक, वहां पे फील्डर थे, मौका मिल रहा था लेकिन गेंद को वहां पे कैदर नहीं कर पाए और 4 रन। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 11 रन। जूनियर रियाज आज हमारे साथ है, वो मुकाबला देखने नहीं आए, वो मोबाइल देखने आए, यहाँ पे इंजॉय कर रहे मोबाइल के साथ छोटे रियाज। 11 लॉस ऑफ 1, 56 रनों का लक्ष्य का पीछा। रावल खान इस बार गेंद को हल्के हाथों से सॉफ्ट हैंड से खेला, क्योंकि लास्ट थोड़ा सा ऑकवर्ड पोजीशन में आ गए थे बल्लेबाज। आखिरी मोमेंट में उन्होंने खुद को यहां से कहा कि भाई सिंगल के लिए जाऊंगा। रियाज और प्रिंस की ये जोड़ी बीच मैदान के अंदर कमाल करती हुई पहले ओवर के समाप्ति। स्कोर कार्ड पे लगे 12 रन, 56 रनों का लक्ष्य का पीछा, 56 इज द टारगेट। और 56 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तक पहले ओवर में रन आए 12। मरबूर की अच्छी शुरुआत में कहूंगा, इसी शुरुआत के लिए वो जाने जाते। 56, 56, अब तक 56, कौन एनकाउंटर करेगा इस मुकाबले में, ये देखना होगा। हमारे दर्शक जो ऑनलाइन जुड़े हैं एसीएल यूट्यूब चैनल के साथ, श्री लाइव के साथ, उन सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज ये तीसरे दिन में, आज जब हम ग्राउंड पे आए थे ना, तो ये कंडीशंस मैदान पे आप देख रहे हो, जो बैनर फटे हुए हैं, सब कुछ है, वो कंडीशंस नहीं थी जब हम रमजी भाई के साथ आए। ये बाउंड्री लगभग अंदर जा चुकी थी और उसके बाद रमजी भाई, कुणाल, मैं, हमारे कैमरामैन बंटी और हितेश, हम सब उस बाउंड्री को पीछे लेके, हरिराम हमारे साथ थे, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया और हमने फिर से उस ग्राउंड को सजाया। और आप देख रहे हो, अब खेलने लायक ये मैचेस आपको देखने मिल रहे, खेलने लायक ग्राउंड आपको देखने को मिल रहा है। अब तक का स्कोर 12 पे 1, अभी भी 44 की ज़रूरत आने वाले 30 गेंदों में। हमारे साथी कमेंटेटर शिलजार भाई आपको अंग्रेजी में इस टूर्नामेंट का आंखों देखा सुना रहे, और मैं चिराग मेहर ऑल द वे फ्रॉम इंडिया आपके साथ जुड़ा हूँ। गेंदबाजी में परिवर्तन, पहला पावर प्ले का ओवर बल्लेबाजों के नाम रहा। हालांकि पहला विकेट जल्दी चला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी वापसी की थी वहां पे। अब यहां से क्या देखने को मिल सकता है? 12 पे 1 गेंदबाजी के लिए सनन, मलकंद स्टार्स के ये गेंदबाज है और वो अब गेंदबाजी के मोर्चे पे आए हैं, उनका भी स्वागत करेंगे क्योंकि मुकाबला तगड़ा है। अभी भी 44 की जरूरत है, तो रिक्वायर्ड रेट 9 के आसपास है। आज बड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे। आज कोकन से भी बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे क्योंकि आज वलीद 11 आपको इन एक्शन देखने को मिलने वाली है। वलीद भाई अपनी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद है, उनका भी करेंगे तहे दिल से स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। आज हमारे डीजे राहुल नहीं है। सनन तेज तरार गेंद, लेकिन ये तो इन्होंने दिमाग की बत्ती को जलाया, सिर्फ प्रेशर था। और ये देखिए, और अंपायर अब कह रहे हैं कि भाई ये नो बॉल है क्योंकि 3 खिलाड़ी सब 38 सर्कल के अंदर है। क्या हुआ यहाँ पे? वही कुछ हुआ था, यस। और ये देखिए दिमाग की बत्ती को जलाते हुए बल्लेबाज ने जड़ दिया चौका, और अब ये गेंद होगी
फ्री हिट, मराठी में इसे कहते हैं उघडा डोळे बघा नीट, पुढचा चेंडू फ्री हिट। ऐसा ही कुछ होने वाला है, भरपेट खाना बिल नहीं चुकाना, ऐसी वाली गेंद है ये, फ्री हिट की गेंद। सनन का स्वागत किया चौके के साथ। रियाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 गेंद इन्होंने खेली है, अब ये फ्री हिट है। इसका मतलब है इन्हें पता है कि भाई मनचाहा स्ट्रोक खेल सकते, आउट नहीं हो सकते, सिर्फ आउट होंगे रन आउट के रूप में। इसी कारण उनके मन में कोई दबाव नहीं, हवाएं चल रही है। देखिए आप अगर गेंदबाज को देख रहे हैं ना, उनकी वो टी शर्ट जो लहरा रही है, इसका मतलब देखिए कितनी जोर से हवाएं चल रही है, और उसमें 12°C। इसका मतलब भाई सोने पे सुहागा। 12 पे 17 पे 1, फ्री हिट की गेंद। अब यहाँ से क्या अंपायर से बातचीत कर रहे हैं, क्या टाइम क्यों लिया जा रहा है? आपके पास टाइम घड़ी तो टिक 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 करके चल रही है, ये रुकने वाली नहीं है। आप टाइम के पे भी मद्देनजर रखें, नहीं तो और एक खिलाड़ी अंदर आ जाएगा, ये भी ध्यान रखें। अब क्या बातचीत हो रही है यहां से? अब क्या ये बातचीत हो रही है, क्यों टाइम रुका है अभी? ये फिर से डिस्कशन में जा रहे हैं, ये डिस्कशन चल रहा है। ये क्यों डिस्कशन, क्यों इतना टाइम लिया जा रहा है? ये टाइमर तो चालू ही रहेगा, टाइमर नहीं ऑफ होने वाला है, क्योंकि ये डिस्कशन टीम कर रही है। मुकाबले की ओर बढ़ेंगे, मुकाबला रुका था लेकिन अब फिर से शुरू हो चुका है। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पे खतरा अभी भी मंडराता हुआ। पहली गेंद नो थी, उस पे चौका आया। अब यहाँ से क्या मरबू की टीम इस मुकाबले को आसानी के साथ अपने साथ लेके जाएगी, या फिर गेंदबाज कुछ करेंगे? फिर से वही डिस्कशन हो रहा है, अब फिर से वही डिस्कशन हो रहा है कि भाई मुकाबला अब रुक चुका है, फिर से मुकाबले की ओर बढ़ने वाले हैं। मुकाबला क्यों रुका है? क्या प्लेयर्स की पोजीशंस को देख रहे हैं, क्या प्लेयर्स की पोजीशन बदली हुई है, वो देखा जा रहा है। ये सब कुछ देखा जाएगा, क्योंकि अगर प्लेयर्स की पोजीशन भी चेंज होती है तो उस पर बहुत कुछ होगा। प्लेयर्स की पोजीशन कहाँ पे है ये भी देखना होगा। ये मैच इसीलिए रुका है। अब अंपायर वही कह रहे हैं, भाई आप अपना मैच स्टार्ट कीजिए। यस, मैच स्टार्ट हो चुका है। 17 पे 1, फ्री हिट की गेंद थी, अंपायर ने कहा फिर से नो बॉल, ओ नो नो, और फ्री हिट कायम। ओवर स्टेपिंग का नो है भाई, ये ओवर स्टेपिंग का नो। इसका मतलब है कि गेंदबाज काफी आगे चले गए थे। अब फ्री हिट कायम अभी भी। या अच्छी वापसी गेंदबाज की, 2 गेंदें लगातार डॉट की, एक तो खराब थी। अब सेकंड मैच के टॉस के लिए जाएंगे। अगला मुकाबला जो होगा आज की रात का मैच नंबर 8 इस टूर्नामेंट का, वालिद 11 वर्सेस चाय मकान। चाय मकान, प्लीज कम फॉर द टॉस इमीडिएटली। इस बार क्या साउंड है, स्वीट साउंड, गेंद आउट ऑफ द पार, ये छक्का नहीं अट्ठा। व्हाट अंपायरिंग भाई, आज जिस प्रकार से रियाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई मेरे पाले में जब जब आएगी मैं इसे भेज दूंगा तारामंडल में। लाजवाब स्ट्रोक, स्कोर अब जाके पहुंचा है
24 रन, 24, लॉस ऑफ 1। अब इस मुकाबले के लिए जीतने के लिए चाहिए 32 रन। गेंदे 28। ये ओवर महंगा साबित होता हुआ, 2 गेंदों में 12 रन अब तक। ये फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को सिर्फ दिशा दी अंपायर ने, कहा भाई फिर से नो बॉल। ओ नो नो, कहानी ये है भाई। ये ओवर ऐसा घट रहा है जैसे मानो किसी ने आपके ऊपर नोटों की बरसात की, रनों की बरसात की है। ये देखिए, ये नो बॉल, और इस गेंद को भेज दिया जिस प्रकार से। ये 5 रन, ये पंजा मिलेगा और स्कोर मूव्स ऑन 29। 26 की जरूरत। अब इक्वेशन कह रहा है कि 28 गेंदे और 27 की जरूरत। 28 बॉल्स रिमेनिंग, 27 रन रिक्वायर्ड। इस ओवर में अब तक रन आए 17। इस बार ये गेंद डाउन द लेग थी, लेकिन स्टंप के नजदीक से गई, इसलिए अंपायर ने कहा भाई ये डॉट बॉल है, क्योंकि प्लेयर्स ने इस गेंद को जिस प्रकार से खेला नहीं। और ये जा रहे रिव्यू के लिए। रिव्यू। उच्च न्यायपालिका के पास गया ये निर्णय। इट्स अ फेयर डिलीवरी, इट्स अ फेयर डिलीवरी। रिव्यू लॉस फॉर टीम मरबू। बल्लेबाजी करने वाली टीम का वलीद 11 के कैप्टन, वलीद 11 सारा संघाचा कर्णधार चला या टॉस साठी। इस बार फिर से अच्छी गेंद, वो लाइन को अब ये पकड़ के चल रहे हैं बल्लेबाज के। जो इनका वीक पॉइंट है ना, उनको वो अब जान चुके हैं, और इसी कारण लगातार उसी टिप्पे पे गेंदबाजी करते हुए बाल बाल बच रहे बल्लेबाज रियाज। इस बार गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से ढकेला, वहां पे शॉर्ट टर्न पे खिलाड़ी है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर मूव ऑन 30। लास्ट बॉल आना बाकी। और अब जो इक्वेशन बता रहा है ना, वो 25 में 26। एक बॉल बाकी है, एक बॉल बाकी है सर, लास्ट बॉल बाकी है। पहला नो बॉल, दूसरा नो बॉल, फिर डॉट, फिर 6, फिर नो बॉल, फिर डॉट, फिर डॉट फॉर सिंगल। लास्ट बॉल। इस ओवर की कहानी देखिए। लास्ट बॉल। और इस बार अच्छी गेंद थी, लेकिन सिंगल बटोरा जाएगा यहाँ पे। ओवर नंबर 2 जो काफी महंगा साबित हुआ। पहले ओवर में रन आए थे 12। इस ओवर की बात की जाए तो इस ओवर में रन आए 19। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 31, 31 रन। 31, 31 रन, लेग बाय के संकेत अंपायर के। अब 18 गेंदे और रनों की माफ कीजिए 24 गेंदे और रन चाहिए 25। 24 में 25। वालिद 11 और चाय मकान के बीच अगला जो टॉस होगा। सुल्फान सलीम, इनके ऊपर निगाहें होने वाली है।
गेंदबाजी के मोर्चे पे नए गेंदबाज को बुलाया जाएगा। सोहेल की गेंद ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी। इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, जहां से फील्डर फील्ड करेंगे। थोड़ा सा फंबल और देखते देखते 2 रन पूरे। 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड में बदलाव होते हुए स्कोर जा पहुंचा अब यहां से 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। एक एक के साथ अब कारवा बढ़ता हुआ। स्कोर अब तक का 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। और कहीं ना कहीं इस मुकाबले में आपको जान डालनी होगी गेंदबाजों को। सोहेल को विकेट की तलाश में निकलना होगा अब, क्योंकि मुकाबला अगर चाहिए तो अपने पक्ष में। अंपायर के संकेत नो बॉल। अब ये कहानी तो रुकने वाली नहीं है भाई। ये नो बॉल की कहानी तो इस मुकाबले में तो नहीं रुक रही है, लगातार नो बॉल। और अब यहां से फिर से बल्लेबाज के लिए मौका मिलेगा कि भाई वो फ्री हिट की गेंद खेले। अब तक का स्कोर 36 रन। अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 20 की जरूरत है। स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज प्रिंस को ज्यादा मौका नहीं मिला हाथ खोलने का। यहां से मौका मिल सकता है, क्योंकि आपके पास मौका है तो मौके पे चौका लगाओ या छक्का लगाओ। क्या वो ऐसा देखने को मिल सकता है? लेकिन सुहेल की बात करें तो अच्छी खिलाड़ी है, लेकिन आज उनको भी थोड़ा सा वो दबाव महसूस होता हुआ। छत्तीस पे 1। इस बार ये पटकी हुई गेंद थी, गेंद हवा में जरूर है, फील्डर आएंगे, कैच होगा जरूर, लेकिन नहीं, कैच तो छूटा। और उसी के साथ मुझे लगता है बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। स्कोर मूव्स ऑन 38 38 पे 1। ओवर नंबर तीसरा चल रहा है। आप देख रहे हैं एशियन क्रिकेट लीग का ये सीजन 4 और ये मैच नंबर 7, जहां पे मरबू और दूसरी जगह हम देख रहे हैं मलाकंद स्टार्स। ये दोनों आमने सामने हैं। अब तक इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। स्ट्राइक पे अब बल्लेबाज आएंगे प्रिंस, जो अब तक बड़े स्ट्रोक लगाने में नाकाम रहे हैं। लोअर फुल टॉस गेंद थी। इस बार गेंद को खेला, 1 रन यहां से मिलेगा। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। लगातार 39 पे 1। कहीं ना कहीं यहां से 39 पे 1 है टीम। और इस बार पटकी हुई गेंद, उसका फायदा उठाया, गेंद को भेज दिया सीधा पार्किंग में। जब आती है गेंद स्लॉट में तो उसे जरूर भेजते हैं पार्किंग प्लॉट में। बॉल बैटिंग 6 रन। आज रियाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये 32 पे जा पहुंचे, और जब जब खराब गेंद मिलती है ये छोड़ते नहीं है। व्हाट अ बैटिंग, सिक्सर। पैंतालीस रन, 11 की जरूरत। और इस बार गेंद को खेलना चाह रहे थे कुछ अलग ढंग से, गेंद बल्ले पे आई नहीं, डॉट बॉल। और ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट यहाँ पे आता हुआ। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का वक्त है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं ना जाए, देखते रहे एशियन क्रिकेट लीग सीजन 4 का ये मैच नंबर 7। इसके बाद मैच नंबर 8 आने वाला है। और वलीद 11 के सामने शाही मकान।
वलीद 11 वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। इसके बाद का जो मुकाबला है, वलीद 11 वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। अब स्कोर कार्ड की बात की जाए, 45 रन, अब 18 गेंदों में 11 चाहिए। और एशियन क्रिकेट लीग, इस लीग की कुछ अलग ही कहानी है। हम हमेशा कहते हैं इस लीग में जब आते हो आपको बहुत कुछ अलग देखने को मिलता है। हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पे जो प्राइजेस है उसके बारे में चर्चा करूंगा। आप सभी को पता है दर्शक यहाँ पे आते हैं, वो अपने मोबाइल को स्कैन करें, आप अपने घर लेके जा सकते हैं 32 इंच एलईडी टीवी। और अच्छी गेंद इस बार, थोड़ा सा पटकी हुई गेंद, बल्लेबाज को टेस्ट करते हुए गेंदबाज रावल खान। अब तक का स्कोर 45 पे 1, 17 गेंदे 11 की जरूरत। ये मुकाबला थोड़ा सा ऑर्गेनाइजिंग टीम कमेटी का थोड़ा सा टाइम बचाने वाला है, क्योंकि इस मुकाबले की बात करें तो थोड़ा हम देरी से चल रहे थे, आज हवाई नहीं चल रही है। इस बार यू बेस्ट मी, आई डेफिनेटली हिट यू, गेंद अंदर और तीनों दंडिया बाहर, विकेट आता हुआ। व्हाट अ बॉलिंग। आज की ये जिस प्रकार से आज बल्लेबाजी की है, तालियां बज रही है प्रिंस के लिए। रिफाज, न्यूमैन इन, रिफाज और रियाज, ये दोनों बल्लेबाज जानते हैं बल्लेबाजी। और आज मरबू के लिए जिस प्रकार से ये, मैं कह रहा हूँ कि अब प्लेटफॉर्म तो सेट हो चुका है। जिस प्रकार से 56 रनों का लक्ष्य का पीछा था, 45 बने, 2 विकेट, और सेट बैटर अभी भी अंदर है जिनका नाम है रियाज, जिन्होंने 32 पे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। 15 गेंदें खेली है उन्होंने, तो मेरे हिसाब से तो वो अभी भी रेडी है। अब सिर्फ 11 की जरूरत है। स्ट्राइक पे होंगे रिफाज। आप देख रहे हो एशियन क्रिकेट लीग का ये मुकाबला नंबर 7। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, इस गेंद को खेला, थोड़ा सा अटैकिंग गेंद के लिए जाने जा रहे हैं। अब हम बात करें तो गेंदबाज रावल खान पहले ओवर में 12 खर्च किए थे, इस ओवर में 1 विकेट इन्होंने हासिल की। अब जो इक्वेशन है आपके सामने है, देखिए 15 गेंदे 10 रन। क्या थोड़ा सा हम बात करें बल्लेबाज रियाज की, तो क्या वो मुकाबले को जल्दी खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद इस बार बल्ले पे आई नहीं, पहले तो बीट हुए बल्लेबाज और उसके बाद बीट हुए कीपर। तो यहां से मिस्टर एक्स्ट्रा के रूप में यहां पे रन मिलता हुआ। स्कोर कार्ड की बात की जाए, 46 रन 10 की जरूरत है। रावल खान ने अच्छी वापसी की है, लेकिन जो बीच का जो दूसरा ओवर था जहां पे रन चले गए थे, वही ओवर था जहां से मैच पूरी तरह से टर्न हुआ था, क्योंकि 44 चाहिए थे तब 30 में, और वो ओवर 20 रनों का चला गया। अगली गेंद, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, इस बार सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई गलती नहीं कर रहे, एक से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर मूव्स ऑन 48, 48 रन। अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 13 गेंदों में चाहिए सिर्फ 8, 13 गेंदे 8 रन। रियाज की तारीफ करूंगा, 16 गेंदे 32 रन, 16 के स्ट्राइक 200 के स्ट्राइक रेट से अब तक बल्लेबाजी करते हुए, और अच्छी बात है टीम के लिए। अच्छी गेंद इस बार, गेंद और
बल्ले में कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। ओवर समाप्त होती हुई यहाँ पे 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे अब तक 48 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और अभी भी 12 गेंदों में रनों की बात की जाए तो रन चाहिए 8। आपके पास सिर्फ 6 मिनट बाकी है, आपको ओवर कंप्लीट करना है, ध्यान रखें प्लीज। 48 रन। अब गेंदबाजी के लिए फवाद, ये भी अच्छा खिलाड़ी, इनका भी नाम हमेशा ही चर्चा में रहता है फवाद। लेकिन अब क्या यहां से वो मैच को टर्न कर पाएंगे? रिफाज की ये गेंद, लेकिन देखना होगा कि ये गेंद जिस प्रकार से चली गई, बल्लेबाज पूरी तरह से नाकाम और लाइन के अंदर है गेंद, इसी कारण अंपायर ने वाइड करार नहीं दिया। ये बिंदी गेंद आएगी। अब जो इक्वेशन कहता है वो ये कह रहा है कि 11 गेंदे 8 रन। अगर वो दूसरा और 19 का नहीं चला जाता तो मुकाबले में जान डाल सकते थे गेंदबाज फव्वा। इस बार ये थोड़ा सा झाड़ू वाला स्ट्रोक है, स्वीप देखिए, लाजवाब। और ये मिलेंगे रन पूरे 4। डीप फाइन लेग बाउंड्री को क्लियर करने वाला ये चौका 4। लपेट के खेला जिस प्रकार से इस गेंद को, और 4 रन मिलेंगे। अब स्कोर जा पहुंचा 52 रन 2 विकेट के नुकसान पे, 4 की जरूरत। कुछ अलग करना चाह रहे थे, अंपायर के पास गए, अंपायर ने कहा भाई ये गेंद काफी ऊपर है और इसे वाइड करा दिया जाएगा। ऑलरेडी आपके पास बैंक बैलेंस कम है, आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो। स्कोर मूव्स ऑन 53 53 और अभी भी 3 की जरूरत है। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, यहाँ पे सीधे बल्ले से खेला, फील्डर है वहां पे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 54। अब सिर्फ 2 की जरूरत है। स्ट्राइक पे होंगे रियाज, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है, 17 में 32। क्या यही वो खिलाड़ी है जो मैच को अब फिनिश कर पाएगा? फवाद, गेंदबाजी में इनके पास मिश्रण है लेकिन आज रन नहीं है इनके पास। इस बार गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से ढकेला, 1 रन। उम्र 55 की, दिल बचपन का, हमेशा कहा जाता है। 55 रन कंप्लीट होते हुए यानी मैच जो स्कोर लेवल हो चुका है, सिर्फ 1 की जरूरत है। सिलजार भाई हमारे साथ जुड़ने वाले हैं नेक्स्ट इनिंग के लिए, क्योंकि इसके बाद बड़ा मैच आएगा वलीद 11। इस बार ये विनिंग स्ट्रोक, और इसी के साथ मरबू ने इस मुकाबले को जीत लिया है। 8 विकेट से इस मुकाबले को जीतते हुए हम जाएंगे वहां पे मैन ऑफ द मैच सेरेमनी के लिए। शेलजार भाई हमारे साथ जुड़ेंगे मैन ऑफ द मैच सेरेमनी के लिए। मैं चिराग में ले रहा हूं एक छोटा सा ब्रेक, आपके साथ जरूर जुड़ूंगा सेकंड इनिंग में। तब तक के लिए जय क्रिकेट। Thank you, Mr. Chirag. What a performance from Riaz Mohammed.